رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم أرني حق حقا سورة البقرہ آیت 21 سے لفظی وضاحت سے افتتاح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ہے حرف ندا، جیسا کہ اکثر ہی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا محمد یا اللہ۔ ایوہا خاص کرنے کے لیے ہے، جیسے الف لام میم ہوتا ہے، اور ندا میں تاکید اور وارننگ لانے کے لیے ایوہا استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیے یا ایوہ الذین الناس، یا ایوہ الناس، الف لام جب آتا ہے تو یا کے ساتھ ایوہا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ الف لام کی وجہ سے ایوہا آیا ہے یا کے ساتھ، مطلب وہی ہے اے لوگوں۔ سوبدو عبد یعبدو عبادت سے ہے، عین بادال عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عجز و انکساری سے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، اظہار کرنا اپنے مطلوب کا، اپنے مقصود کا، اپنے محبوب کا، محبت، تعظیم اور خوف کے ملے جلے جذبات لیے ہوئے۔ اور عبادت کہتے ہیں مخصوص افعال کو، عبادت کے لیے جو مخصوص افعال کیے جاتے ہیں ان کو عبادت کہا جاتا ہے، عمل کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اے لوگوں عبادت کرو۔ ربکم، اپنے رب کے، ربا یربو تربیہ سے ہے، رب کہتے ہیں خالق، مالک، مدبر کو، جو ہمارا بنانے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے۔ الذی ایسا موصول ہے جو پچھلے جملے کو اگلے سے ملاتا ہے، اس لیے الذی کا مطلب کیا ہے؟ رب۔ وہ خلقکم، خلق یخلق، خلق مخلوق سے ہے، خلقکم، کاف میم کم، کم کا مطلب ہے تم سب کو، ہم جیسے وہ سب تھے، کم یہاں پر آئے گا، اب لگاتار اس لیسن میں کم آئے گا، کم کا مطلب ہے تم سب کو۔ اچھا، اب خالق کیا کہتے ہیں؟ پیدا کرنا، تخلیق کرنا، کچھ نہ سے بنانا، ٹھیک ہے، مادے سے وجود میں لانا، مادے کے بغیر وجود میں لانا۔ اور والذین اسم موصول، من قبلکم، من حرف جارہ، قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم کاش کے تم، شاید کہ تم، تتقون کیا ہو جاؤ؟ ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تتقون کس سے ہے؟ تقوی سے ہے، واو قاف یا، کیونکہ واو حرف علت ہے تو اس نے اپنی شکل بدل لی ہوئی ہے، وا قاف یا، تقوی سے، تتقون تا کہتے ہیں تم سب ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی، وہ ذات باغ، اب اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ الذی جعل، جیم عین لام، بنانا، خلق تخلیق ہوتا ہے، اور جعل بنانا، خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو، اور جعل کہتے ہیں موجودہ چیز سے بنانے کو۔ جس نے بنایا، لکم لام حرف جارہ، کم تم سب کو، جس نے بنایا تم سب کے لیے، کس کو؟ زمین کو۔ کیا بنایا؟ زمین کو فراش بنایا، الارض جیسے ارتھ بولتے ہیں، ارتھ زمین، ٹھیک ہے، اور فرش کہتے ہیں اسپریڈ آؤٹ کو، جو بچھاتے ہیں بستر، اور بستر کیا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے۔ بس سما سمبن سے ہے، بلندی کو کہتے ہیں، اور آسمان بلندی کو کیا بنایا؟ بنا، چھت کو کہتے ہیں، عمارت کے اوپر جو چھت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ انزلہ نزول سے ہے، پہلے ہم نے انزلہ پڑھا تھا، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارا گیا، اور انزلہ کا میننگ ہوگا اتارا، ٹھیک ہے، پیش آنے سے مطلب بدل جاتا ہے، مجہول ہو جاتا ہے، پیسو ایکٹیو سے پیسو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا لفظ آیا؟ انزلہ، اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی کو کہتے ہیں، اور فاخرج اخراج سے ہے، اخراج اس نے نکالا، خارج کیا، بھی، اب جہاں جیسے ہم نے ذہبہ بھی پڑھا تھا، ذہب کا مطلب جانا، اور ذہبہ بھی کا مطلب لے جانا، اسی طرح سے فاخرج بھی کا اخراج سے مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اخرج بھی اس نے نکالا، بھی ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھل، رزقن پھلوں سے رزق، یعنی کہ پھل، ثمرات کہتے ہیں ثمر کو، فروٹس، اور تمہارے لیے، فلا تجلو، اور نہ، فلا لا نہ واپس، تجلو جالا سے ہے، تا تم جالا بناؤ، نہ تم بناؤ، للہ لام حرف جارہ، پھر اللہ کے لیے، اندادن
कौन शरीक, नद से है, नून दाल दाल, नद कहते हैं मद्दे मुकाबिल जो किसी की जात में शरीक हो। वो अंतुम और तुम सब, तालमून जानते तो हो तुम इस सब बात को, आलमा युअल्लिमु तालीम से है, तालिमून तुम सब जानते हो। वो इन कुंतुम और अगर हो तुम, फी राइब, राइब हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, शक में। और अब कौन सा शक, जो कि इस तरह पैदा कर दे, जो उकताहट पैदा कर दे, जो मुस्तरिब कर दे, ऐसे शक को कहते हैं। मिम्मा, मिन और मा, ये दो लफ्ज से मिलकर बना है, मिन और मा से, इससे जो नज़ला नाजिल किया ना हमने। अब यहाँ ना हम का सीगा आया तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि हम प्लूरल के लिए आया। यहाँ पर लैंग्वेज का स्टाइल है, इज्जत के लिए, ताजीम के लिए अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। हमने नाजिल किया अला अब्दिना, अपने बंदे पर, अला पर, अब्द आइन बादाल, अब्द इबादत से, बंदगी करने वाला, गुलाम, ना हम हमारे अपने। फातू, आता यूती, अता से है, हमजा ताया, यहाँ पर दो हर्फ इल्लत आए हैं इसलिए शक्ल बिल्कुल बदली हुई है। तो यहाँ पर आता है, आता, आता आना, बा इसके साथ आया तो क्या होता है, जैसे अता आना और बा साथ लाना, ठीक है, जिस तरह से जहाबा भी था, इसी तरह से यहाँ फातू भी है, फातू भी का मतलब साथ ले आना। भी सूरत, सूरत यहाँ से मुराद कुरान पाक की सूरा है। असल में सूरत का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री वाल को कहते हैं सूरत, यानी कि जो बाउंड्री वाल होते हैं। यहाँ पर मखसूस चैप्टर का नाम है, और किता को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं। मिसली ही, इस जैसी, मिसल ममासलत के लिए है, लाइक। ही का जमीर जा रही है ये सूरत की तरफ। अब जो अपने बंदे पर नाजिल किया यानी कि कुरान पाक। वदऊ, दुआ या दुऊ, बुलाना, पुकार। शुहदा, शहीदा, गवाह को कहते हैं, शहीद जो गवाही यानी कि मददगार, हेल्पर। कुम तुम सब, यहाँ पर देखें कुम आ रहा है बार बार, कुम कहते हैं तुम सब, ठीक है। मिन दून इल्लाहि, अल्लाह के सिवा। इन कुन तुम अगर हो तुम, स्वादिकीन, स्वादिकीन सिद्क से है, स्वादिकीन सिद्क से, सिद्क कहते हैं हकीकत के मुवाफिक, और इसका उलट क्या होता है, किज़्ब, जो कि हकीकत के खिलाफ होता है। फ़इन लम तफलू, अब यहाँ पर देखिए एक नया लफ्ज हमने पढ़ा है, फ़इन्ना, अगर लम, लम ना कर सको, फ़अला कहते हैं करने को, तफलू तुम सब, वाओ आ गया जमा का, तुम सब ना कर सको, लम ना, नो, वलन तफअलू, और हरगिज नहीं, तफअलू तुम सब कर सकोगे। अब देखिए हरफे नहीं आप नोट कर लीजिए, लम, लन, ला और मा, ये चार हम पढ़ चुके हैं। एक खुद मखसूस, मखसूस एक दो और भी हैं, वो साथ जैसे ही आएंगे तो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो हरूफ नफी लम, लन, ला, मा, ये नो के लिए आते हैं। तो ना तुम कर सकोगे, फत्तकू, डरो, अन्नार, नार कहते हैं आग को, नूर से है, अल्लती, इससे मसूला है, ये मुन्नस के लिए आया है, ठीक है। वकूदोहा, वकूद तो हम लफ्ज पहले पढ़ चुके हैं, इस तऊ का दनारा, वाकदा याकिदु, ईंधन को कहते हैं। और अन्नास, लोग, अलहिजारा, और ईंधन कौन कौन होंगे, लोग होंगे और पत्थर होंगे। हिजर कहते हैं रोकने को, मना करने को, और हिजर इस्तेमाल किस लिए होता है, पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पत्थर जहां पर आए तो वहां पर रुक जाती है चीजें, और सबसे मशहूर पत्थर का नाम आप लोग जानते हैं, हिजर अस्वद। वो इद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है। अद्दद युअद्दिदु, अद्दद क्या कहते हैं, गिनती को कहते हैं, अदद कहते हैं गिनती को। अब यहाँ पर तैयार और गिनती का क्या मीनिंग, आपस में क्यों मसलत आ रही है, इसलिए कि तैयारी, ऐसी तैयारी करना जिनको हम काउंट करके रख लें, एक्यूरेटली तैयार करना, एक्यूरेसी, इतनी परफेक्शन के साथ तैयारी करना कि उसको हम काउंट कर लें। और इद्दत लिल काफिरीन, जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। और वकुलना, ठीक है। बशीर, बशीर कहते हैं, बशर युबशीर, तबशीर, बशर खाल को भी कहते हैं, और बशर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लजी, बशर अल्लजीना, खुशखबरी दीजिए, अल्लजीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, आमिलू अमल किया, अमल करना, अस्सालिहात, सालिह से है नेकी से, नेक अमल करते हैं वो नेक। अन्ना हरफ ताकीद है, ताकीद लाया गया, लहुम बेशक, लहुम उनके लिए, जन्नात जन्नतें हैं, तजरी बहती हैं, मिन ताहतिहा इसके नीचे से, अल अनहार नहरें।
तहत नीचे कहते हैं तहतिहा, कुल्लमा जब कभी, रूजी को रिज्क से है, उन सबको रिज्क दिया जाता है, मिनहा उससे, यानी कि जो वहां पर रिज्क मतलब दिया जाता है फलों से, मिनस समरात किससे, फलों से जब उसको रिज्क दिया जाता है, कालू वो सब कहते हैं, हाजा ये, अल्लजी ये तो वही है, रुजिक ना जो हमें दिया गया था, मिन कबलू जो पहले से ही दिया, यानी कि दुनिया में जो रिज्क दिया गया था वैसा ही है। तो यानी कि ममासलत होगी, शक्ल में, शेप में ममासलत होगी। वो ऊतू बिहा दिया अता किया जाएगा, ऊतू आता बिही इनसे मुतशाबिहा जो कि मिसल होगा, ममासलत से, शबीह किसको कहते हैं, एक जैसा होना, शबीह से मुशाबिहा निकला है, मुशाबिहा मिलता, शक्ल शक्ल उसकी, शेप उसकी और रंग उसका, साइज उसका मिलता जुलता होगा, लेकिन जब वो टेस्ट करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। वलहुम ला उनके लिए, फीहा उसमें, अजवाज, अजवाज कहते हैं स्पाउस को, जो कि मियाँ और बीवी दोनों के लिए आता है, और अगर औरत के लिए हो तो जोजा इस्तेमाल होता है। अजवाज होंगे मुत्ताहरा, पाक पाकीज़ा होंगे, उनकी सोचे पाकीज़ा होंगी और वो पाक होंगे। वहुम उनके लिए, वहुम और वो, फीहा उसमें रहेंगे, खालिदून, ये खुल्द से है, खालिद से, खालिद किससे है, खुल्द से, खा लाम दाल खुल्द हमेशगी के लिए आता है, तवील अरसे तक रहना। ठीक है, ये हो गई लफ्जी वजाहत। अब हम इसकी तफसीर देखेंगे। सूरत बकरा के शुरू में हमने इंसानों के 3 ग्रोहों का हाल पढ़ा, मुत्तकी, काफिर, मुनाफिकीन। इसके बाद तमाम इंसानों को अल्लाह की इबादत की दावत दी जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है तौहीद का, और खिताब किससे है, खिताब आम है, या अय्युहन्नास, अलिफ नाम किसके लिए आता, खास कर, जैसे आपने पढ़ा था अलहम्द, खास करने के लिए आता है, इस तरह से नास भी तमाम लोगों को शामिल किया जा रहा है, चाहे वो मुत्तकी हैं, काफिरीन हैं, मुनाफिकीन हैं, और ईच एंड एवरी कबीला और हर किस्म के लोगों के लिए कहा जा रहा है क्या करो, ए तमाम इंसानों, सुबुदु, आबदा युबुदु, इबादत करो। कुरान पाक में सूरह अज़्ज़ारियात आयत 56 में आया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि आपकी और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, इबादत करना। तो यहाँ पर हमें वही मकसद की तरफ हमारी पैरवी की जा रही है, हमें फॉलोअर्स बताई जा रही है कि आप इसलिए पैदा हुए हो, कोई इबादत करो। किसकी इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, जो तुम्हारा रब है। रब कौन है, अल्लज़ी वही तो है, खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया। अब मतलूब, मकसूद, महबूब कौन होना चाहिए, जिसने आपको खालक किया, खल्क किया। तो अतात भी उसकी, मोहब्बत भी उससे, खौफ भी उससे, इज्जत भी उससे, गुलामी भी उसकी और बंदगी भी उसकी, और महबूब भी सिर्फ वही होगा। उसने क्या किया, पैदाइश, पैदा किया आपको, तो क्या करो, झुक जाओ उसके आगे, जिसने आपको वजूद अता किया है। क्यों, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने क्या, क्यों क्यों झुक जाए, खालक़कुम, क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें वजूद दिया है, तुम्हें जिंदगी दी है। अब हमारे हाथ ना हो, पाँव ना हो, मुंह ना हो, ये तो सब मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और तख्लीक करने वाला नहीं है, और कोई और तख्लीक करने वाला नहीं है, और वो है मिन क़ब्लिकुम, तख्लीक तुमको भी किया है और जो तुमसे पहले थे उनको भी किया, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून। इसका नतीजा क्या होगा, क्यों, लालम ताकि तुम बच जाओ, किससे बच जाओ, आग से बच जाओ और जहन्नुम से बच जाओ। क्या है कि तुम उसकी मलकियत हो। और आप देखिए, अपनी चीज से तो सब प्यार करते हैं, और अपनी बनाई हुई, खास तौर पे जब हम खुद बनाएं, इवन क्या हम सब लोग, लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, जब हम रोटी अपनी बनाते हैं तो वो भी हमें कितनी प्यारी होती है। जब हम सालन बनाएं या हम कोई चीज क्रिएट करें या हम स्टिचिंग करें, तो अपनी बनाई हुई चीज हमें कितनी ही ज्यादा महबूब होती है, हालांकि वो हमारे पास मवाद पहले से मौजूद था, हमने उसको बनाया था। तो इसी तरह से चाहे क्वालिटी में कैसी भी हो, वो चीज़ प्यारी होती है। इस तरह के हम क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो अल्लाह ताला को हम महबूब हैं, वो हमें पसंद करता है क्योंकि हम उसकी तख्लीक हैं। अल्लाह की बात क्यों करें? क्योंकि इसने बनाया है, वो हमारा खैर-ख़्वाह है, और वो हमें बताएगा कि हमने क्या करना है, क्या नहीं, तो हमें उसी की बात माननी चाहिए। कायदा क्या है कि जो आपको तख्लीक कर रहा है, आप उसकी बंदगी करो, क्योंकि वो हमारे साथ भलाई चाहता है, वो मोहब्बत करने वाला है, वो रज़ाक है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो हमारी ज़रूरतों का ख़्याल रखता है, वही हमारी बात मानता है। तो क्या है, आप एक मिसाल अपनी माँ की ले लीजिए, हालाँकि वो तख़लीक नहीं कर रही होती, वो सिर्फ़ पैदा करती है, तो वो क्या करती है?
وہ آپ کے کھانے کا، آپ کے پینے کا، آپ کی ہر اس ضرورت کا خیال رکھیں گی جو آپ کو ضرورت ہو۔ ایون کہ اکثر جو زیادہ محبت کرنے والی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں تاکہ ان کی اگلی زندگی آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح سے ہمارے اوپر کئی ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر خیر خواہی ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے تو جو حکم بھی وہ ہمیں دے اس میں کڑک ہو، گرج ہو، بجلی ہو، پانی ہو، ٹھنڈ ہو، چاہے وہ تیز ہوا چلے، چاہے آندھیاں ہوں، سب میں کیا ہے ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا اس کی عبادت کا؟ اسی بات کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون، آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ گے، تقوی نصیب ہوگا۔ تقوی کس لیے چاہیے ہمیں؟ تقوی ہمیں چاہیے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، اور ہمیں کیا کنڈیشن دی گئی تھی؟ اگر ہم متقی ہوں گے تبھی ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو خوشی کس کو نصیب ہوگی؟ تقوی والے کو۔ اللہ کی محبت سے ہمیں تقوی نصیب ہوگا۔ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو ہم عبادت کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ متقی ہو جائیں گے۔ متقی بننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا اور سٹارٹ میں بھی فرمایا کہ جب تک متقی نہیں ہوں گے ہم اس کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جنت بھی کیا ہے؟ متقین کے لیے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ جنت بھی متقین کے لیے، للمتقین، متقین کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جگہ قرآن پاک میں آیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ جَعَلَ لَهُ مُخْرِجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں اکثر ہماری زندگی میں پرابلم ہوتی ہیں اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہمیں تکلیف ہمیشہ ہمیں اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے، تو ہم فیصلے نہیں کر پاتے اس تکلیف میں۔ جب ہم متقی ہوں گے تو ہمارے راستہ خود بخود اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں۔ اور خوف ایک موٹیویشنل ایلیمنٹ ہے، جب تک ہمارے اندر خوف ہوگا تب ہم سے سب کچھ کروا لیتا ہے وہ خوف۔ اور ہمیں تقویٰ پیدا کیسے کرنا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ بتایا گیا عبادت۔ عبادت وہ کیسے کرنی ہے؟ اس طریقے سے کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادت کرنے سے تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب ہم عبادت کریں گے تو تقویٰ بڑھ پیدا ہوگا، اور تقوی سے ہم اور زیادہ عبادت کریں گے تو عبادت سے ہم متقی ہو جائیں گے، اور متقی سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اگلے مزید اب دلائل دیے گئے اگلی آیت میں مزید دلائل دیے گئے۔ الذی جعل، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کیوں بات کرنی ہے اس کی؟ الذی، اگرچہ وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن جعل لکم الارض، اس نے زمین بھی بنائی۔ کیا زمین بنائی؟ فراش بنایا تمہارے لیے زمین کو، یعنی کہ فرش بنا دیا۔ بستر کیا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے، تو ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے اور ہم اس پہ سوتے ہیں۔ والسماء بنا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ چھت کیا ہے؟ وہ بھی پروٹیکشن کا ایلیمنٹ ہے، ہمیں پروٹیکشن محسوس ہوتی ہے تو ہم ریلیکس ہوتے ہیں۔ وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاخرج به، اور اس سے پھل نکالے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ سورۃ زاریات میں آیا ہے وانتم، تمہاری انسان کی تخلیق سے زیادہ سخت ترین کام کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں بنا سکتا۔ یہ آپ اور میں اور سب جانتے ہیں کہ یہ بات کس کی ہونی چاہیے؟ جس نے آسمان کو بھی بنا دیا۔ والارض فراشم والسماء، اور زمین اور آسمان کو بنا دیا۔ تو کیا کیا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ انسانوں کی تخلیق ہے۔ تو ایک جگہ قرآن پاک میں آخر اس بارے میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا، سورۃ نبا میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے پنگوڑا اور جھولا بنا دیا، وہاں پر آپ سوتے ہو، آپ پروٹیکٹ محسوس کرتے ہو، اور آسمان کو آپ کے لیے پروٹیکشن بنا دیا ہے۔ تو یہ دو نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، زمین اور آسمان کا۔ تو خلقنا السماء سمکن محفوظا، ہمارے لیے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ پانی کا اخراج کیا۔ اس سے کیا بات مت ہے؟ بادلوں سے پانی آتا ہے، تو بادلوں سے پانی آتا ہے اور پانی کے ذریعے رزق پھلوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ حالانکہ تم یہ سب جانتے ہو، سب مانتے ہو کون ہے خدا، کیا کر رہا ہے خدا، تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ تمہیں چاہیے فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی شریک۔ اس آیت سے وانتم تعلمون، تم جانتے تو ہو، تم سب جانتے ہو کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمہارے لیے پانی نکالا ہے، تمہارے لیے ہر طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں۔
अच्छा, और इस आयत से जो हमें पॉइंट समझ में आते हैं, नंबर एक, अल्लाह ने हम पर बहुत एहसानात किए हैं। सबसे ज्यादा हाँ एहसान किया है, हमारी तख्लीक किया, तो हमारी तख्लीक में इतनी परफेक्शन के साथ किया। दूसरा, जमीन बिस्तर की तरह आरामदेह नरम बाइस सुकून बना दिया। नंबर थ्री, आसमान को छत बना दिया। और अब इसका पॉइंट ले लीजिए, तो नंबर फोर, अल्लाह ताला ने पानी उतारा, फल पैदा किए। पानी क्या है? सुकून दे, जब हम पानी पीते हैं तो हमें सुकून मिलता है। फल क्या है? खाना खाते हैं, सुकून मिलता है। तो बाइस राहत है, सुकून है और खुशी है। तो इबादत करो, शिरक ना करो। इस आयत से हमें दो मैसेज मिले हैं। पहला, सुबुदु इबादत करो। दूसरा क्या मैसेज मिला? शिरक ना करो, अंदाज ना बनाओ उसके। और अब हमें अल्लाह ताला ने आया इस अब वक्त तक क्या क्या बातें बता दी। तकवा, कुफर, मुनाफकत, इबादत, तौहीद और शिर्क, ये कंसेप्ट अल्लाह ताला ने अभी तक वाजिया कर दे आयत नंबर 22 तक। वान तुम तालमून, इल्म के बाद इनकार करना बहुत बड़ा जुर्म है। इस लफ्ज की आखिरी बात से समझ में आता है, और तुम जानते तो हो। जब जानते हो फिर क्यों इनकार करते हो? किस चीज से इनकार किया जाता है? जिस चीज को हम मानते हैं उस चीज से, जानते हैं उससे इनकार किया जाता है ना, जिसका पता हमें मालूम हो, इल्म हो। तो इबादत से इनकार नहीं करना है। अब क्या है? अकीमुस्सलात, नमाज कायम करनी है तो करनी है, इनकार नहीं करना है, इकरार करना है। तो इसी रब का खाते हो, चलते हो, फिरते हो, उसी रब से सुकून लेते हो, फिर इसकी बात नहीं मानते हो, सारी जिंदगी बात का इनकार करते रहते हो। तो ये क्या है? बेवफाई है। जिसने सब कुछ दिया छोड़कर हम उसके किसी गैरों की झोली में जा गिरे, गैरों की बात करें, गैरों को हम इमदाद बना लें अपने, हम अपने तो जब इंसान अल्लाह ताला का नहीं बनता है तो वो शैतान का बन जाता है। तो दो ही कंडीशन है, ये अल्लाह का बनेगा, ये शैतान का बनेगा। नफ्स का बंदा कभी भी अल्लाह का नहीं बन सकता। हम अपने दिल के गुलाम बन जाते हैं। कैसे? ख्वाहिशात के बंदे बन जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं, हम अपनी नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये हमारा हक था, ये हमें मिलना चाहिए था, लेकिन जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला? तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है। तो अल्लाह ताला से हमें सुकून मांगना चाहिए, और मकसूद क्या हो, मतलूब क्या हो और महबूब क्या हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस आयत तक हमें अल्लाह ताला ने इन दो आयतों में ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद समझा दिया। कलमे का पहला हिस्सा यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट आयत में कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे के पहले हिस्से के बाद अब सेकंड पार्ट की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही क्या है? किताब है। तो मौजज़ा क्या? आयत नंबर 23 में हमें फरमाया, वइन कुंतुम फी रैब, अगर तुम इस बात पर शक पर हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की। बन अब्द क्यों कहा? अब्द कहने की वजह पीछे इबादत कहा गया था कि इबादत की बात हुई है, तो यहाँ बताया कि अब्द, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या थी? और इस सूरत मोहम्मद में नाम लेकर बताया अल्लाह ताला ने, वमा आमनु बिमा नज़्ज़ला अला मोहम्मद, कि वो उस पर ईमान नहीं लाते जो हमने मोहम्मद पर नाजिल किया। सबसे बेहतरीन इबादत किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो वो नमाज कैसी पढ़ते थे? सारी सारी रातों को जागते थे, इवन कि उनके पाँव सूख जाते थे। हज़रत आयशा उनसे पूछती थी, क्या आपको आपके अगले और पिछले गुनाह माफ नहीं कर दिए गए? फिर आप मेरी इबादत क्यों करते हैं? तो आप क्या फरमाते? अन अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं? तो आज हमारा क्या रवैया है? तो इबादत शुक्रगुजारी का नाम है। इबादत पसंदीदा तरीका है जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करेंगे। अल्लाह के बताए हुए तरीके पर इबादत करना है। और अगर शक पर हो तो तुम कोई ऐसी सूरत बना लो। कलाम को जानते हो। अब अरब के ऊपर ये कलाम उतर रहा था। अरब उस वक्त जबान के बहुत बड़े माहिर थे, उनके पास जबान थी, वो फसी और बलीग लोग थे और जबान के माहिर थे। तो ऐसा कलाम उनको ला कर दिया कि वो बेजबान हो गए। फातु बिस्वत में मिसली, कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरत में बताया गया कि एक सूरत ले आओ, कुरान जैसा कोई कलाम ले आओ। एक जगह फरमाया 10 सूरतें ऐसी ले आओ। सूरत बनी इसराइल में, सूरत तूर में इसके बारे में बताया गया। लोगों ने कोशिशें भी की, मगर इस जैसा कलाम वो नहीं ला सके। इसकी जबान, इसकी तरतीब, इसका स्टाइल, इसकी तरकीब, इसका रब्त, इसकी पेशन गोइयां, इसके अहकामात इंतहाई खूबसूरती से इसके अंदर जैसे मोती परोए हुए हैं इसके अंदर। पढ़ पढ़ कर इंसान का दिल नहीं भरता। और इस एक इंतहाई नगमगी है, एक फ्लुएंसी के साथ पढ़ा जाता है। पढ़ा जाए तो दिल के तारों को छेड़ देता है, और सुना जाए तो उससे भी लुत्फ आता है। तो कुरान को हर बार पढ़ने का नया अंदाज देखें। बहुत सी कुरान किताबें हम पढ़ते हैं तो उससे कभी हम बोर भी हो जाते हैं, लेकिन कुरान पाक ऐसा है कि जब भी पढ़ा जाए हमें सामने नए उसके राज खुलते हैं। तो क्या फरमाया कि अपने सपोर्टर्स ले आओ, अपने गवाह ले आओ, अपने सपोर्टर्स ले आओ। अल्लाह ताला के सिवा मददगार, अगर तुम सच्चे हो किस बात में कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है। क्या कहते थे कि कुरान ये खुद बना लाए हैं, तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर तुम ये दावा करते हो तो जाओ अपनी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी को भी ले आओ। अगर तुम ना कर सको, क्या फरमाया?
अगर तुम सच्चे हो, किस बारे में सच्चे हो? कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नहीं है, कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है, तो इस पे सच्चे हो। तो इस दावे के तौर पर आपने सारे एक उसमें आया कि आप पूरी दुनिया के जिन और इंसान इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी इस जैसा कलाम नहीं ला सकेंगे। तो अगर ना कर सको और हरगिज नहीं कर सको, अब जरा देखें इसे फर्क है। लम ना कर सको सिंपल नो है, और लन में ताकीद पाई जा रही है कि हरगिज कर ही नहीं सकोगे तुम, तो डरो उस आग से। किससे डरो? आग से डरो। क्यों आग से डरे? अल्लती, वो जो के तैयार की गई है, उस और इसका ईंधन है नास, लोग और पत्थर। इंसान और पत्थर इसका ईंधन होंगे, फ्यूल। ईंधन क्या कहते हैं? एक दूसरे के जितने विस्फोटक ले आओ, क्या होगा? तुम नहीं बचा सकते। तो किससे? इस आग, जहन्नुम की आग से डरना है जिसमें फ्यूल है इंसानों और पत्थर। इंसानों और पत्थर। पत्थर क्या होते हैं? वो खुद जलते हैं और वो जलन पैदा करते हैं। दूसरा, इंसानों के अंदर क्या है? इंसानों के अंदर बाल है जो कि एक फ्यूल है। इंसान के अंदर फैट है, आप देखिए खाना फैट से बनता है, वो ऑयल है, तेल है, फ्यूल है। और इंसानों के अंदर और क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम भी क्या होती है? जब आप देखिए जलता हुआ कभी कैल्शियम को देखिए तो उसमें अंदर से धुआं निकलता है, तो कैल्शियम भी क्या है? जलने के काम। और दूसरा क्या? फास्फोरस है इंसान के जिस्म में। फास्फोरस क्या होता है? जो माचिस के ऊपर वो रेड कलर की थोड़ी सी लगी होती है, वो फास्फोरस होता है। जब इसको जलाया जाता है कितनी देर से भड़कती है इंसान के अंदर। तो इनके फिर हम कुरान की मुखालफत करें, कुरान की मुखालफत का अंजाम क्या होगा? आग। और आग बढ़ेगी। फलन नजीदुकुम इल्ला अज़ाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क में फरमाया गया इनका अजाब बढ़ाया ही जाएगा, कम नहीं होगा। और हिजारा क्या होते हैं? गंधक के पत्थर। आप देखिए सल्फन में कभी देखिए गर्म पानी में कैसे उबल रहे होते हैं। तो इंसान और पत्थर क्या होंगे उसका? अब क्या हमें बताया गया? अल्लाह ताला ने इस आयत में वहदानियत के लिए कहा। और दूसरा क्या फरमाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गवाही दी। गवाही क्या है? कुरान। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसकी गवाही कल भी कुरान था, आज भी कुरान है। और कुफर और इस्लाम के बीच की जो दीवार है, जो गवाही है, वो भी क्या है? कुरान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और मोहम्मद पर ईमान लाना ही असल मोहम्मद रसूल लाना ही हम मुसलमान हो सकते हैं उससे, जब हम। अच्छा जी, अब ओ इद्दत उनके लिए तैयार की गई है जो इनकार कर दें। इस दौर में देखिए कुरान पाक उस दौर में उतरा जिस दौर में ना प्रेस थी, ना नेट था, ना कोई तरीका था संभालने का। लेकिन कुरान पाक में क्या कहा? यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, हमने उसको भेजा, हिकमत वाला कुरान है। और उसको किस पर लिखा गया था कुरान पाक उस वक्त? पत्थर पर, झाल पर, चमड़े पर, एक टुकड़े पर। और ये कुरान पाक हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कंडेंस फॉर्म में, यानी कि जिल्द की फॉर्म में भी नहीं था, अलग अलग चीज़ों पर था, पत्थर पर था, जहन्नम की छाल पर था, इस तरह से। और फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में एक जिल्द में महफूज हुआ। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में आप देखिए उसकी ऑफिशियल कापियाँ बन के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ इस्लाम की हुकूमत थी वहाँ फैला दिया गया। और आज हम देखते हैं कि रंग रंग का कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। 1400 साल गुजर गए, नो चेंज, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो इबादत किसी करनी चाहिए? खालिस अल्लाह के की इबादत करनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। तो रिसालत का सबूत क्या है? अब देखिए खुशखबरी किसको दीजिए? खुशखबरी उसको दीजिए जो अमल कर, इल्म रख के बाद अमल करे, इल्म के बाद अमल सालिहा भी करे। और उसके लिए ज़रूरत क्या है? नियत की। पहले नियत खालिस होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या होगी? सुन्नत के मुताबिक होगी। इखलास, इखलास किसके लिए होगा? अल्लाह ताला के लिए होगा। और अमल साले इल्म के ज़रिए से होगा। ठीक है? 2 चीज़ें हैं आप इसमें देखिए, इल्म होगा तभी अमल होगा। तो इल्म और अमल के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? इखलास की ज़रूरत है। इखलास किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। और अमल किसके लिए होना चाहिए? और अमल जैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर। और बात करने से पहले जैसे हमारे पास इल्म होना ज़रूरी है। बात तब इबादत बनती है जब हमें उसका इल्म हो। बात तब इबादत बनती है जब हमें उसका इल्म हो। कैसे? नमाज का इल्म होगा तो हम नमाज उस तरीके से पढ़ेंगे, पाकीज़गी का हमें इल्म होगा तो हम पाकीज़ा रहेंगे। और इसी तरह से रोज़े और हज के बारे में अमल सालिहा के लिए इखलास और इल्म फ़र्ज़ है। इखलास अल्लाह के लिए और इल्म कितना? सुन्नत का। 2 चीज़ें इस आयत में हमें 2 चीज़ें बताई हैं, इखलास और इल्म। इखलास अल्लाह के लिए और इल्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का। इन्ना लहुम, किनके लिए? ईमान लाकर जो नेक अमल करते हैं, इनके लिए क्या होगी? जन्नात, बागात होंगे उनके लिए। क्या फरमाया गया हमारे हमारे लिए
کہ ان کے لیے خوشخبری دو جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے جنت ہوں گے۔ عمل کون سے وہ جو بتا دیا گیا عمل کیسا ہوگا، اس علم کے مطابق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان لہم جنہ، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو بھی رزق ان کو دیا جائے گا پھلوں سے رزق، تو وہ کہیں گے یہ رزق تو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ تو باغات دیکھیے، آج کسی کے پاس چھوٹے سے باغات ہوں تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور باغات بھی ایسے ہوں گے جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے باغ بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مفت میں باغ نہیں بنتے ہیں، محنت جب تک نہیں ہوگی تو باغ تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح سے آخرت کی باغات کے لیے جو کہ ہمیشگی کے ہوں گے، اس کے لیے کیا ہمیں آج محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ آج ہم محنت کریں گے تبھی تو ہمارے باغ بہترین ہوں گے۔ ایسے باغ جس میں نہریں ہیں دودھ کی، شراب کی، اہتمام کے ساتھ ہمیں دیا جائے گا۔ اور پہلے کھانے پر ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ تو سائز شیپ میں بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن ٹیسٹ کا ڈفرنٹ ہوگا۔ اس میں کیا ہوں گے؟ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مطہرہ اور پاکیزہ۔ اس میں حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، میل نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، وہم نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کے دل حسد اور برائیوں سے ہر قسم سے پاک ہوں گے، اور وہ اس میں رہیں گے فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو ایک دفعہ قدم رکھ دے گا، ایک دفعہ جو جنت میں قدم رکھ دے گا، وہ پھر وہاں سے نہیں نکلے گا، ہمیشگی سے وہاں رہے گا، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو آج کا سیشن میں ہم نے دیکھ لی ایکسپلینیشن۔ اب آپ لوگ جو کوشچن ہوں گے وہ آپ انمیوٹ کریں گے اور وہ کوشچن پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو مائک کھول دی ہوں، میں آپ کوشچن کر لیجیے۔